آگے رمضان آیا، آگے رمضان آیا، آگے رمضان آیا، آگے رمضان آیا۔ قوم ایک، مذہب ایک، سجدہ ایک ہستی کو، مانا خدا کے آخری نبی کو۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ماہ رمضان ایک انعام کی صورت ہمیں ملا ہے، جہاں ہم سمجھیں گے ایک دوسرے کے تقاضوں کو، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ ناظرین آداب، پروگرام رمضان کی رونقیں میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج کا یہ ایپیسوڈ ہم کرناٹک کے دو تاریخی شہر گلبرگہ اور رائچور سے پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان دونوں شہروں کا شمار حیدرآباد کرناٹک خطے میں ہوتا ہے۔ ان دونوں شہروں پر حیدرآبادی تہذیب کا گہرا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ گلبرگہ ہو یا رائچور، انہیں اولیاء اللہ کی سرزمین سمجھا جاتا ہے، صوفی سنتوں کی سرزمین سمجھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ دونوں مقامات مذہبی رواداری، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، ہندو مسلم بھائی چارگی کا مظہر ہیں، گہوارہ ہیں۔ تاریخی، تہذیبی، مذہبی اور اردو زبان و ادب کے لحاظ سے یہ دونوں شہر کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ چلیے گلبرگہ اور رائچور کے متعلق مزید جانتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے دوران یہ دونوں شہر کیسے نظر آتے ہیں۔ رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں، رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں، رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں، رمضان آ گیا۔ جنوبی ہند کی تاریخ میں شہر گلبرگہ اور رائچور کو اہم مقام حاصل ہے۔ 6 صدی سے 13ویں صدی تک یہاں مختلف راجاؤں کی حکومتیں رہی ہیں۔ ان میں راشٹرکوٹا، چالوکیا، کلاچری، ہوسلیہ، کاکٹیا، اس طرح کئی راجاؤں نے دکن کے علاقوں پر حکمرانی کی۔ 1321 سے یہاں مسلم حکمرانوں کا دور شروع ہوا۔ گلبرگہ سمیت دکن کا پورا علاقہ دہلی کے سلطانوں کے زیر اقتدار آیا۔ چند سالوں کے بعد دہلی کے سلطانوں کو بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دہلی سے دکن کی جانب بھیجے گئے ظفر خاں علاء الدین حسن گنگو نے 1347 میں بہمنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ حسن گنگو نے گلبرگہ کو بہمنی سلطنت کا صدر مقام بنایا۔ اس وقت گلبرگہ کا نام حسن آباد تھا۔ مسلم حکمرانوں کی آمد کے ساتھ دکن کا یہ علاقہ تصوف اور روحانیت کا مرکز بھی بن کر ابھرا۔ سلطان تاج الدین فیروز شاہ کی دعوت پر
حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے گلبرگہ تشریف لائے اور یہیں سکونت پذیر ہوئے۔ مختلف سلطنتوں کی حکومت یہاں رہی۔ پھر 1347 عیسوی میں حسن شاہ گنگو شاہ بہمنی نے یہاں بہمنی سلطنت قائم کی، اور تاریخی اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے گلبرگہ کو بہمنی سلطنت کی راجدھانی بنایا۔ پھر کئی سالوں کے بعد بہمنی سلطنت 5 مختلف سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی، اور جب اورنگزیب نے دکن کو فتح کر لیا تو یہاں پر مغل امپائر کی حکومت بھی رہی، اور حال ہی تک یعنی 1948 تک گلبرگہ آصف جاہی مملکت کا حصہ بھی رہا ہے۔ تو یہ گلبرگہ کی تاریخی اہمیت رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں رائچور کے تاریخی قلعے میں۔ رائچور کی تاریخی اہمیت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے سماجی کارکن اقبال منیار صاحب۔ بتائیے سر کہ تاریخی اعتبار سے کیا مقام رہا ہے رائچور کا؟ یہاں پہ رائچور شہر میں راجاؤں کی حکومت تھی، جس میں چالوکیہ، کاکتیہ اور وجے نگر راجاؤں کی حکومت تھی۔ اس کے بعد بہمنی اور نظامیہ حکومت تھی۔ نظامیہ حکومت میں رائچور شہر بہت ہی ترقی کیا ہے، جمنا تہذیب کا گہوارہ ہے، اور یہاں پہ اردو زبان زیادہ بولی جاتی ہے، اور اتنے ہندو بھائی مسلم بھائی سب مل کے ایسے یہاں پہ رہتے ہیں۔ سن 1428 میں بہمنی سلطنت 5 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ان میں بیجاپور کی عادل شاہی، بدر کی برید شاہی، احمد نگر کی نظام شاہی، برار کی اماد شاہی اور گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنتیں شامل ہیں۔ 1687 میں مغل بادشاہ اورنگزیب نے پورے دکن پر اپنا قبضہ جمایا، لیکن 18ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہونے لگی۔ اس وقت اورنگزیب کے ہی ایک سپہ سالار آصف جاں نے مملکت حیدرآباد کی بنیاد رکھی۔ اس طرح گلبرگہ، رائچور اور دکن کے چند دیگر علاقے مملکت حیدرآباد کا حصہ بنے۔ ملک کی آزادی کے بعد گلبرگہ، رائچور، بیدر اور چند دیگر علاقوں کو ریاست میسور میں شامل کیا گیا۔ بہرحال دکن کی تاریخ مسلم حکمرانوں کے کارناموں، تعمیری، ترقیاتی اور فلاحی کاموں سے بھری ہوئی ہے۔ اس دور میں عربی، فارسی اور اردو زبانوں کو خاصا فروغ حاصل ہوا۔ نظام سرکار کے دور سے اردو ادب کی ایک تاریخ حیدرآباد، کرناٹک، خصوصاً گلبرگہ اور رائچور میں بہت ہی پراثر رہی ہے۔ تاریخی اعتبار سے حضرت سید شاہ عبد القادر نور دریا سے شاہ محمد قادر نور دریا یہاں رام بابو سکسینا کے کہنے کے مطابق پہلے اردو صوفی شاعر ادیب گزرے ہیں، جن کا آج بھی اسے شریف منایا جاتا ہے۔ شہر گلبرگہ اور رائچور میں موجود قدیم مندر، مساجد، درگاہ اور ملی جلی تہذیب فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ صوفی سنتوں کی اس سرزمین پر ہندو، مسلمان اور دیگر مذاہب کے ماننے والے مل جل کر زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی گلبرگہ اور رائچور کی فضا میں نمایاں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر طرف روزہ داروں کی چہل پہل اور مساجد، درگاہوں اور خانقاہوں میں عبادتوں کے روح پرور مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے احاطے میں موجود مساجد میں مصلیوں کی کثیر تعداد دیکھنے کو ملتی ہے۔ درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے احاطے میں ہم موجود ہیں اور یہاں روزہ داروں سے گفتگو کر رہے ہیں، تو فرمائیے کہ کیسا ماحول رہتا ہے یہاں پر؟ ماحول بہت سکون کا ہے، بہت اچھا لگتا ہے ادھر نماز پڑھنے۔ دکن کے خواجہ کے دربار میں آگے کوئی بھی آنے خالی ہاتھ نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے، رمضان کا پہلا جمعہ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے گرمی تو بالکل محسوس نہیں ہو رہی۔ الحمدللہ ہم سب اچھے طریقے سے روزے رہ رہے ہیں اور نمازوں کی پابندی بھی ہو رہی ہے،
اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں جمعہ کی نماز ہو گئی ہے، اب ہم سب باہر جمعہ کی نماز پڑھ کر باہر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو رمضان کا مبارک مہینہ ملا، اور رمضان کی ایسی برکت ہے کہ ہر ایک دن ایسے گزرتا ہے جیسے کہ مانو کچھ الگ ہی منظر ہو اس کا۔ ہر دن اچھا جاتا ہے، نمازیں اچھی طریقے سے ہوتی ہے، جو بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں ہمارے روزانہ کے دنوں میں ہم انشاءاللہ تو وہ تو نہیں کرتے، اور اچھی طریقے سے پابندی تو ہوتی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ روزے اچھے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، جو نیکیاں کمانے کا جو مہینہ ہے اس ٹائم ہی اچھا ہے۔ اس شدت کی گرمی میں بھی ہمیں مزہ آ رہا ہے روزے کا، اور اسلام کیا چیز ہے، اسلام میں کتنی چیز ہے وہ ہم کو دیکھ کے لوگ سیکھ رہے ہیں۔ اب روزے میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ تڑپ کیا چیز ہوتی ہے، بھوک کیا چیز ہوتا ہے، اس کا احساس ہمیں دل سے اور دماغ سے ہو رہا ہے۔ دوسری جانب رائچور میں بھی مساجد، گھروں اور دکانوں میں لوگ عبادتوں اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں۔ ان دنوں یہاں شدید گرمی ہے، لیکن ایمانی حرارت کے سامنے موسمی حرارت کمزور اور دبی ہوئی نظر آتی ہے۔ ماہ رمضان میں بندگان مومن کی ایمانی اور روحانی کیفیت دوبالا ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں رائچور کی ایک مینار مسجد کے سامنے، چند روزہ دار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا استقبال ہے، رمضان کی مبارکباد، کیسے شب و روز گزر رہے ہیں؟ بس الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ روزے الحمدللہ دھوپ بہت تیز ہے رائچور میں، پھر بھی بچے، نوجوان بچے، چھوٹے بچے بہت گزرا کے دن روزے رہ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، رائچور میں بہت نظر کرم ہے اولیاء اللہ کی، اور اس لیے بہت الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت فضیلت کا مہینہ ہے، جو کہ رہنا ضروری ہے ہر مومن کے لیے۔ انشاءاللہ ہم لوگ وہی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ چاہے دھوپ ہو یا بارش ہو، روزہ تو رہنا ہے، عبادتیں کرنا۔ یہاں وہ تو ہے، روزہ تو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، روزہ رہنا دیکھو ہر 7 سال کا لڑکا سے فرض ہے مسلمان کے لیے روزہ رہنا۔ جب بھی کام سے فری ہو جاتے ہیں تو عبادت کی اور ہی چلے جاتے ہیں۔ اب مہینہ ایک ہی رہے گا، یہ تھوڑی نا بار بار آئے گا، یہ سال میں ایک ہی مہینہ آئے گا، تو یہی مہینے میں عبادت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہت خوشی کا مہینہ ہے یہ، 13 سے 14 گھنٹے بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، یہ کوئی طاقت کی بات نہیں، عالم غیب کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے رہا ہے کہ ہم روزہ رہ رہے ہیں۔ روزانہ آپ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ تقریباً 3 بجے اٹھتے ہیں، 3 بجے اٹھتے ہیں، سحر ہوتی ہے، فجر ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، نمازیں ہوتے ہیں 5 نماز، پھر تراویح ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے مصروفیت ہے سمجھے رمضان کی وجہ سے۔ سحری کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نماز کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، واپس آ کے پھر اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں۔ سال میں ایک مہینہ ہماری گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مہینہ ہم پر عطا کیا، اور من فضل ربی جو لوگ زندہ ہیں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ رمضان کے روزوں کی کیفیت الگ ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کیا ہے۔ ہم جب روزہ رہتے ہیں تو غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے ہم کو۔ شہر میں دیکھنے کی وہ خوبصورتی رہتی کہ ہمارے خواتین، ہماری ماں اور بہنیں تقریباً 3 بجے سے بیدار ہو کر چھوٹے 7 سال کے بچے سے لے کے 95 سال کی عمر کے بزرگ آج الحمدللہ شہر رائچور میں کثرت سے روزہ ہیں۔ اور مسجدیں میں سمجھتا ہوں مناسب یہ ہے کہ 100 مسجدیں ہیں، شاید میں سمجھ رہا ہوں کہ مسجدوں میں جگہ نہیں مل پا رہی ہے، اور اعتکاف بھی کثرت سے کیا جاتا ہے، اور افطاری کے وقت یہاں کے بیپاریوں کو میں سمجھتا ہوں 1-آدھا گھنٹہ فرصت بھی نہیں ملتی۔ ماہ سیام کی معطر فضائیں اور پرکیف بہاریں گلبرگہ اور رائچور کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ لوگ اس ماہ کے ہر لمحے کو غنیمت جان کر اپنے رب سے قریب تر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ دوستو، اس وقت ہم موجود ہیں رائچور کے تاریخی قلعے میں۔ پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا۔
ब्रेक के बाद देखेंगे कि गुलबर्गा और रायचूर में किस तरह मुसलमान माह रमज़ान की इबादतों में मसरूफ़ हैं, किस तरह अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। अज़्ल इसके पीछे अब्द सामने, अज़्ल इसके पीछे अब्द सामने, न हद इसके पीछे न हद सामने, खुदी में गुम है खुदाई तलाश कर गाफिल, यही है तेरे लिए अब सलाह की राह। सलाह इस्लाह का सबसे बेहतरीन ज़रिया, सबसे बड़ा ज़रिया माह रमज़ान है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जनूबी हिंद की मशहूर व मारूफ़ दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के सामने। तसव्वुफ़ और रूहानियत के इस मरकज़ से चलिए जानते हैं माह रमज़ान की क्या अहमियत और क्या फ़जीलत है। रहमत के खुले दरवाज़े रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाज़े रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाज़े रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बुजुर्गान दीन ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को हर सू आम किया। इन बुजुर्गों की दावत, तबलीग व इशाअत का नतीजा है कि मज़हब इस्लाम दक्कन की सरजमीन पर तेज़ी के साथ फैला। शहर गुलबर्गा के उलमा इकराम कहते हैं कि रमज़ान के दौरान औलिया अल्लाह की कैफियत बदल जाती थी और वो कसरत के साथ नमाज़ों, इबादतों और तिलावत कलाम पाक में मशगूल रहते थे। हज़रत ख्वाजा गौस-ए-दराज बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ रोज़ा रखते थे, बल्कि आप ये फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे ऐसी ताकत अता फरमाई है कि मैं चाहूँ तो 40 दिन तक भूखा और प्यासा रह सकता हूँ, जिसकी वजह से इस बात से हमको यही पैगाम मिलता है, हज़रत गौस-ए-दराज के इस बात से हमको यही पैगाम मिलता है कि एक मुसलमान आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक और इंसानियत का मुजाहरा करे और दूसरों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझते हुए, जैसा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गौस-ए-दराज रहमतुल्लाह अलैह ये कसरत से रोज़ा रखा करते थे, उसी तरीक़े से हम उनकी तालीमात पर अमल करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। औलिया का रमज़ानुल मुबारक और सल्फ़ सालिहीन का, साहबा इकराम का, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ानुल मुबारक ख़ास तौर से, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक को फ़जीलत और फ़ौक़ियत जो हासिल है वो कलाम इलाही की वजह से हासिल है। इसलिए हमारे अकाबिरीन औलिया अल्लाह सल्फ़ सालिहीन का मामूल रमज़ानुल मुबारक में ये था कि वो कसरत तिलावत को अपना मामूल बना लेते थे। इस मुबारक महीने को कुरान ही में अपने आप को मशगूल रखते थे। यहाँ तक कि जो नेक औरतें औलिया मर्दों में भी हैं, औरतों में भी हैं, उनका भी मामूल यही रहा कि वो कलाम इलाही से ख़ास उनका शगफ़ होता था। और इस रमज़ानुल मुबारक में, क्योंकि इस महीने को जो फ़जीलत और फ़ौक़ियत हासिल है तमाम महीनों पर, वो कलाम इलाही की वजह से हासिल है कि कलाम इलाही इस मुबारक माह में नाजिल हुआ और जितने कलाम अल्लाह के नाजिल हुए हैं वो रमज़ानुल मुबारक में ही नाजिल हुए हैं। रोज़े का मकसद तक़वा और परहेज़गारी को मजबूत करना है, अल्लाह ताला के क़ुर्ब को हासिल करना है। रोज़ा और कुरान दोनों बंदे के हक़ में रोज़े महशर में सिफारिश करेंगे। शहर रायचूर के उलमा इकराम माह रमज़ान की अहमियत को कुछ यूँ बयान फरमाते हैं। तो रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ अल्लाह ने रखी है। एक खुशी जब वो इफ्तार करता है कि पूरे दिन भूखा और प्यासा रहकर ख्वाहिशात से रुक कर जब रोज़े की तकमील होती है, रोज़ा खोलता है, इफ्तार करता है, तो उसको बड़ी खुशी होती है। एक खुशी हर रोज़ मिलती है उसको, और एक खुशी उस वक्त मिलेगी जब जन्नत में वो जब जाएगा और जन्नत में अल्लाह के दीदार से वो मुशर्रफ होगा।
वो सबसे बड़ी खुशी रोज़ेदार के लिए है। रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलतें अहादीस में बयान की गई हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक अमल का सवाब 10 से लेकर 700 गुना तक दिया जाता है, परसेंटेज उसका बताया गया है। लेकिन रोज़े के लिए कोई सवाब मुकर्रर नहीं है। अल्लाह जितना चाहे उतना सवाब रोज़े के लिए अता फरमाएगा। और ये रोज़ा यकीनन क़यामत में, ख़बर में, हशर में हर जगह बंदे का साथ देगा, अल्लाह से शिफात करेगा। ये रमज़ान इसलिए दिया गया है कि सबको पता चले, इंसानियत में, मुआशरे में सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का सबक सीख लें। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रूबियाँ। अरे जीने को तो जानवर भी जीते हैं, मगर एक दूसरे का ख्याल करना ये इंसानियत के लिए लाजिम है। इसलिए रमज़ान के रोज़े हैं। अलावा इसके इंसान खाते पीते रहता है, ये भूल जाता है। और खुसूसन आजकल की ग़िज़ाएँ, एक एक दावतों में 10-10, 12-12 किस्म के खाने, मुतज़ाद खाने, जो मिलाकर खाने नहीं खाने चाहिए वो भी मिलाकर खा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं इनको जमा नहीं करना चाहिए पेट में, मगर लोग कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आज पहले से ज़्यादा बीमारियां हैं। अगर लोग इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो उनके लिए रमज़ानुल मुबारक का महीना, रोज़ा एक बेहतरीन चीज़ है। इतने घंटे पूरे साल में एक महीना अगर कोई शख्स रोज़ा रहेगा तो नतीजा ये होगा कि रोज़े की वजह से पेट इतनी देर खाली रखने का नतीजा ये होगा, पेट के अंदर के जो जहरीले जरासीम हैं अमराज के, वो सब जल जाएंगे। रोज़ादारों को देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के बाद हशाश बशाश रहते हैं। क्यों? इसलिए कि भूख और प्यास ने इनके अंदर की बीमारियां जला दी। अल्लाह ताला के रहम व करम से हर साल रमज़ान का मुबारक महीना साया फिगन होता है। इस माह का हर लम्हा कीमती, हर दिन नेकियों का ज़ख़ीरा और हर अशरा अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का ज़रिया है। लेकिन अफसोस कि चंद लोग इस माह की अज़मत को जानकर भी अनजान रहते हैं, इसके फ़यूज़ व बरक़ात से महरूम रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए रायचूर के चंद बुज़ुर्ग अफराद मानो एक सबक हैं। इन अफराद की उम्र 90 साल से ज़ायद है, लेकिन इनकी ईमानी हरारत, जज्बे इबादत और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का मकसद काबिल दीद है। माह रमज़ान के दौरान क्या बच्चे, क्या नौजवान और क्या बुज़ुर्ग, सबों में एक रूहानी खुशी, जोश और जज्बा देखने को मिलता है। इस वक्त एक मुअम्मर खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी उम्र 92 साल है और वो पाबंदी से रोज़ों का अहतमाम कर रही हैं और साथ ही रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करती आ रही हैं। तो बताइए कि 92 साल की आपकी उम्र है, तो दिन की शुरुआत आपकी कैसे होती है? सुबह में 4 बजे उठती हूँ, उठ के मुँह हाथ धो लेको सैरी करती हूँ। सैरी कर होने के बाद में नमाज पढ़ को थोड़ी देर बैठ को कुरान पढ़ना शुरू करती। एक पारा पढ़ को फिर देर लेटती हूँ, फिर एक पारा पढ़ती। इनके रोज़ाना 2 पारे की तिलावत हो रही है? कर रहे, बराबर कर रहा हूँ। सब भी बोले तुम्हारी कमरा मजबूरी से कई रोज़े रहते हैं, न को रहो बोले ना कोई एक रोज़ा रहो को देख तू मैं अच्छे हुए तो बराबर 8 रोज़े अल्लाह के फजल है मैं अच्छी हूँ। रायचूर शहर की एक और बुज़ुर्ग शख्सियत शेख दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 4 मरतबा हज का फरीज़ा अंजाम दिया है और पाबंदी के साथ रोज़ों का एहतमाम करते हैं। फजर से पहले उठता हूँ, पूरी नमाज़ें होते हैं, तरावी भी पढ़ लेता हूँ। नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? मेरी इबादत से उनकी इबादत अबतर है। मेरा 1 साल का इबादत करना है, इनका एक रोज़ की इबादत के मुमासिल है मेरे। यानी नौजवानों के लिए फ़ायदेमंद है। आप जो है 95 साल की उम्र में भी रोज़ा का एहतमाम कर रहे हैं, ये आपके लिए और हम सब के लिए बड़ी बात है। बिल्कुल सही, बड़ी बात है और सबके लिए हमारी दुआएं हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग पूरे माह रमज़ान के रोज़े रखें, इससे बरकत, दलिंदरागी सब चले जाती है। माँ बाप हम सब खुश रहते हैं, इंसान तंदुरुस्त रहता है। और इस वक्त 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना, नमाज कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना।
हम देखते हैं कि कई नौजवान जो है हट्टे खट्टे हैं, मजबूत रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है रोज़ों का एहतमाम नहीं करते। नहीं करते, बिल्कुल गलत है। वो अच्छी चीज़ नहीं, अजाब में आ जाते हैं हम लोग। ये इतना मुबारक महीना छोड़े बाद कई की ज़िंदगी हमारी, हमारे पैगम्बर क्या बोले उस पर अमल करो। देखो कैसी दुनिया बनती, यहाँ लात मारेंगे तो पानी आ जाएगा। हर साल रमज़ान का महीना आता है और ये दर्ज देकर चला जाता है कि सबक फिर पढ़, सदाकत, अदालत का शुजाअत, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्गा के महबस मस्जिद के सामने। प्रोग्राम के अगले हिस्से में सहरी और इफ्तार की सरगर्मियों पर नज़र डालते हैं, तो लेते हैं इस वक्त एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुलबर्गा और रायचूर में रमज़ान की बहारें नुमायां तौर पर देखने को मिल रही हैं। सहरी और इफ्तार के मौके पर यहाँ का मंजर काबिल दीद होता है। तो चलिए सहरी और इफ्तार के मनाजिर से हम रूबरू होते हैं। माह मुक़द्दस रमज़ान में हर तरफ अल्लाह ताला की रहमत बरसती है और बरकतों का नुज़ूल होता है। इफ्तार और सहरी रोज़े के दो अहम जुज़ हैं। इन मौक़ों पर हर तरफ नूरानी मंजर दिखाई देता है। हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की तरह गुलबर्गा और रायचूर का माहौल भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। दोनों शहरों में शिद्दत की गर्मी है, लेकिन अल्लाह की दी हुई कई नेमतें रोज़ादार के लिए राहत का सबब बनी हुई हैं। माह मुक़द्दस के दौरान यहाँ के बाज़ारों में सभी अक़साम के मौसमी फल और मुख्तलिफ़ अक़साम के खजूर रोज़ादारों के लिए दस्तयाब हैं। अल्लाह के फजल व करम से आम है और जो है ना कड़ंगड़ा है, खरबूजा है, चीकू है, मौसम्बी है, हर चीज़ जो है ना फ्रूट पूरे काफ़ी आ चुके हैं। और रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में अच्छे फ्रूट्स रोज़दारों के लिए जो है ना आ चुके हैं। खजूरा तो बहुत हैं, बहुत नमूने खजूरा हैं, मदीने के हैं, ईरानी हैं, मगर उस टाइप का गिराक नहीं है जिस टाइप का गिराक है। स्टॉक बहुत है मगर गिराक नहीं है, फिर भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मौज लिए, सेब लिए, अनार लिए, आम लिए, अभी अंगूर लिए। इफ्तार में गुलबर्गा में जो हरीस बहुत फेमस है, हरीस है, दही बड़े है और ना फ्रूट्स वगैरह है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है इधर इफ्तार में। रमज़ान के मौके के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हम रोज़ा इफ्तार करते हैं और भी बहुत सारा फल जो है अवेलेबल है यहाँ पे। इफ्तारी के लिए सामान ले रहा हूँ, ये जैसे कि दही बड़े हैं, समोसे है, खजूर है, मौज है इधर। इफ्तार और सहरी के मौके पर मौसमी फलों के अलावा कई तरह के नमकीन और जायकेदार पकवान भी मौजूद रहते हैं। गुलबर्गा और रायचूर की तकरीबन तमाम मसाजिद के अतराफ रमज़ान की खुसूसी डिश फ़रोख्त होती हैं। चूँकि यहाँ के खान पान पर हैदराबाद का असर देखने को मिलता है, लिहाजा यहाँ पर हलीम, हरीस, दही बड़े और तरह तरह के समोसे और पकोड़े भी फ़रोख्त होते हैं। इफ्तार के मौके पर चटपटे जायकेदार पकवान फ़रोख्त हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रायचूर के अहम बाज़ार में। बताइए कि क्या ख़ास है, इफ्तार का वक्त करीब आ चुका है।
ये देखिए साहब, ये दही वड़ा है, रोज़दारों के लिए है ना, खुसूसन है ना रमज़ान के मौके पर बनाया जाता है। और ये खीमे का समोसा है जो रोज़दारों के लिए सिर्फ रमज़ान में है ना इस्तेमाल करते हैं। खीमे का शामी है ये, और ये समोसा खीमे का है। क्या कीमत है इसकी? 10 रुपये में 3 है। ये क्या चीज़ है? ये गोभी का समोसा है, 10 को 3 तरकारी का। इफ्तार के टाइम और खजूर लेते हैं और दही और खीमे के समोसे और तरकारी के समोसे और दिल पसंद है, पुग्गे है, वड़े है। गुलबर्गा और रायचूर में इफ्तार के मौके पर हलीम, हरीस, दही वड़े, समोसे, फल फलार इस तरह की चीज़ों का कसरत के साथ इस्तेमाल होता है। चलिए जानते हैं, हरीस जो है गुलबर्गा की एक पहचान है। बताइए हरीस, कब से आप हरीस बनाते आ रहे हैं? 30 साल से हरीस बना रहे हैं हम। तो कैसे बनती है हरीस? घ्यों और चने की दाल, माश की दाल, उड़द की दाल, घ्यों माला, मसाला बनाने के लिए 8 या 10 घंटे लगते हैं। इसको खाने से फ़ायदेमंद चीज़ है ये। बेहतरीन बनाते हलीम हम लोग। हाँ, 40 पर 1 साल होटल हमारा चालू होगा, 77 में चालू हो गया था। अब तक अल्लाह के अच्छे चल रहा है हलीम। मटन का हलीम बनता हमारे पास, स्पीवर मटन। सुबह में 5, साढ़े 4 बजे, 5 बजे स्टार्ट हो जाता, शाम में 5 बजे रेडी हो जाता हलीम। 5 बजे स्टार्ट हो जाता हलीम का, 8:30, 9 बजे तक चलता हलीम। कई मसाजिद में रोज़ादारों के लिए इफ्तार के मौके पर दावत का एहतमाम भी किया जाता है। शहर रायचूर के ज़हीराबाद में मौजूद हजरात नूर शाह मस्जिद में रोज़ाना इफ्तार का एहतमाम करते हैं और मुख्तलिफ अक़साम के पकवान रोज़ादारों के लिए तैयार किए जाते हैं। इस मस्जिद के अंदर रोज़ाना 2000 आदमी का खाने का इंतज़ाम होता है रोज़ा खोलने के लिए। उस इफ्तार के लिए खाने के लिए रोज़ाना एक आदमी अपने तरफ से सालाना बुकिंग हो, 30 दिन का बुक हो जाता, उसका इंतज़ाम मस्जिद कमेटी के लिए सौंप देते। जैसे कि खाना है बिरयानी, एक दिन बगार खाना, पुलाव, उसके बाद वाइट राइस, फ्रूट, खजूर के साथ आदमी वज़ू बना ले के आके बैठना, हम लोग इंतज़ाम करके रखते। घरों की अगर बात की जाए तो सहरी और इफ्तार का दस्तरख्वान काफ़ी वसी दिखाई देता है। रायचूर में मुकीम गुजराती ताजिर अनवर शरीफ अपनी फयाजी के लिए जाने जाते हैं। इनके घर में रोज़ाना अलग अलग डिश तैयार की जाती हैं, जिनमें ज़्यादातर गुजराती जायकेदार पकवान शामिल रहते हैं। इफ्तार के लिए क्या ख़ास बन रहा है? इफ्तार के लिए ये माल पावे बने, दही वड़ा है और खमन ढोकला है। यानी कि रोज़ाना कितने आइटम्स तैयार होते हैं? रोज़ाना हमारे रोज़ के 3 तो आइटम तैयार होते हैं इसमें, नमकीन में, और बाकी के फालूदा वगैरह तो रोज़ रहता ही है। ओके, सहरी में क्या खाते हैं आप लोग? सहरी में हम लोग है ना, कुछ मलाई रहती है, ब्रेड है और दही है और रोटी है, वही खाते। खिचड़ी खाते हैं मूंग की दाल की, इलायची दाल। अनवर शरीफ का ताल्लुक जो है गुजरात से है और गुजरात के पकवान यहाँ पर, गुजरात के जायके यहाँ पर आप देख रहे हैं। बताइए क्या ख़ास बन रहा है? आज हमने बनाया है मालपुआ बनाया है, और इसके अलावा हमने फालूदा बनाया है और दही वड़ा बनाया है, गुजरात का स्पेशल ढोकला बनाया है और चना बनाया है गुजरात स्पेशल, और इसी तरह रशियन कटलेट्स और गुजरात का पुलाव बनाए। जी यही सब बनाए हैं हम लोग ने। तो कामकाज बढ़ जाता है? नहीं, माशाल्लाह हम लोग ऐसे ही रमज़ान की तैयारियां करते रहते हैं। इसके साथ रोज़ा भी हम लोग रखते हैं और माशाल्लाह दरूद शरीफ, कुरान शरीफ और सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं और नमाज सलात सब करते हैं, और इसी तरह हम लोग दस्तर की भी तैयारियां करते हैं। जो ही इफ्तार का वक्त दस्तक देने लगता है, घर का हर फर्द दस्तरख्वान को सजाने में जुट जाता है। बच्चों में खुशी देखने को मिलती है। ख़वातीन, बच्चे और मर्द हजरात सब मिलकर एक दस्तरख्वान पर नज़र आते हैं। भले ही लजीज से लजीज तर पकवान सामने क्यों न हो, जब तक अल्लाह पाक का हुक्म नहीं होता तब तक रोज़ादार एक कतरा पानी भी हलक से नीचे नहीं उतारता। सब्र और ज़ब्त का ये लम्हा अपने अंदर कई मानी रखता है। आप देख सकते हैं कि तरह तरह के लवाजिमात यहाँ पर रखे हुए हैं। इफ्तार का वक्त करीब आ चुका है। अनवर शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बताइए कि कितनी खुशी होती है जब इफ्तार का वक्त करीब आता है? रोज़ा रखने के बाद हमारे को बहुत खुशी होती है कि हम कुछ धर्म के लिए बराबर काम कर रहे हैं, अपने इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह का जो फ़र्ज़ है हम बजा रहे हैं। तो रोज़ाना जो है यही मामूल रहता है आपका? यही हमारे घर पे सब रोज़े में रहते हैं, ज़्यादा करके
पूरी फैमिली रोज़े में रखते हैं। हमारे घर पे दोपहर में सुबह में नाश्ता या खाना बनता नहीं, चूल्हा जलता नहीं है हमारा। और नमाज ये रोज़ा करने के बाद हाफिज़ साहब आते हैं और तरावी के बाद पूरे हाफिज़ साहब, इमाम, पेश इमाम सब खाने के लिए भी हमारे घर पे सब मिल के खाते हैं हम लोग। रायचूर में आप रोज़ों को किस तरह देखते हैं? नहीं, रायचूर में अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हमारे को हो गए हैं, बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे भी माहौल बहुत अच्छा होता है और हमारे घर में तो मतलब सब रोज़ेदार रहते हैं और सुबह से शाम तक उसकी तैयारियाँ करते रहते हैं और ये मतलब बनाने का होता है और दूसरों को भी दावतें होती है। जैसे हम ट्रेडिशनल हमारा गुजरात से हम है, इसके लिए क्या है दूसरों को भी दावत दे के खिलाना, ये सब हमारे उसमें है। अल्लाह रे मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। लेकिन हम देखते हैं अनवर शरीफ साहब पूरे महीने जो है मेहमान नवाजी में मसरूफ़ रहते हैं। रमज़ान यही दस्त देता है। रमज़ान में हर फर्द की तरबियत होती है। रमज़ान की सरगर्मियों का असर बच्चों पर भी देखने को मिलता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। या नबी देखा है रुतबा आपकी नालैन का, अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। रमज़ान सिला रहमी का दर्ज देता है, एक दूसरे की तकलीफ, दुख और दर्द को समझने का मौका फराहम करता है। अपनी खुशियों में गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों को शामिल करने का दर्ज देता है ताकि समाज में मुसावात के दर्ज को आम किया जा सके। दोस्तों, प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि गुलबर्गा और रायचूर के बाजार क्या कह रहे हैं, ईद की शॉपिंग का क्या हाल है। चलिए लेते हैं एक ब्रेक। प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। रायचूर और गुलबर्गा के बाज़ारों में रमज़ान की रौनकें छाई हुई हैं। ईद की ख़रीदारी शुरू हो चुकी है। गाहक ईद और रमज़ान की शॉपिंग में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस मरतबा यहाँ के बाज़ार क्या कह रहे हैं। माह रमज़ान का पहला अशरा यानी अशरा रहमत रुखसत हो चुका है और अशरा मग़फ़िरत हम सब के दरमियान है। गुलबर्गा और रायचूर के बाज़ारों में ईद की ख़रीदारी शुरू हो चुकी है। दर्जा हरारत ज़्यादा रहने के सबब अहम बाज़ारों में ग्राहकों की तादाद कुछ कम दिखाई दे रही है। गुलबर्गा के ख्वाजा बाज़ार, मुस्लिम चौक, सुपर मार्केट, कपड़ा बाज़ार, किराना बाज़ार, कलकत्ता गली, संगतराजवाड़ी और नूर बाग में ईद की शॉपिंग बड़े पैमाने पर होती है, जबकि रायचूर के टीपू सुल्तान रोड, 3 कंदील, जहीराबाद, बस स्टैंड और मक्का दरवाजे पर ईद की शॉपिंग का ख़ास मंजर देखने को मिलता है। सभी दुकानदार नए कलेक्शन, नए डिज़ाइन और नए पैटर्न के साथ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। रमज़ान और ईद के लिए स्पेशल नई डिज़ाइन आई हुई है बांग्लादेश से। बांग्लादेशी टोपी है, पाकिस्तानी टोपी है, ये वाली है अभी सी बांग्लादेशी पाकिस्तानी ये मॉडल है, उसके अंदर फिर ये और एक मॉडल है। न्यू स्टॉक है, प्योर लेज़र के बेल्ट, सादे बेल्ट, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है कारोबार। बस क्या रेट
100, 120, 150. जयपुर, राजकोट, बॉम्बे, दिल्ली, ज़्यादातर अब नए जो डिस्प्ले के जो बैंगल्स वगैरह हैं तकरीबन वैरायटी जयपुर की आना शुरू हो चुकी है पूरे आइटम्स। हैदराबाद के आते हैं मगर जो है ना वो थोड़े कम हो चुके हैं डिज़ाइन हैदराबाद के। अब ज़्यादातर जो है कस्टमर्स जयपुर और कलकत्ता के आइटम्स प्रेफर कर रहा है। हिंदुस्तान के तकरीबन हर कोने से हमारे पास आइटम आती है, कलकत्ता से है, दिल्ली से है और सूरत से तो बहुत सी वैराइटीज़ आती हैं। हैंड वर्क वगैरह में बहुत सी वैरायटी कलेक्शन हमने इकट्ठी की है और उम्मीद है कि इस साल अच्छे से अच्छा रमज़ान चलेगा इंशाअल्लाह। वैरायटी तो हमेशा ही अवेलेबल रहती है 12 महीने ही, लेकिन रमज़ान के लिए कुछ स्पेशल आइटमें आती है तो बस आइटम इसमें है, गरारा है, फ्रॉक्स है, सब नए नए फैब्रिक्स हैं इसके अंदर। ईद की ख़रीदारी बच्चों और ख़वातीन के लिए मानो एक मुश्किल मरहला होती है। क्या लें क्या न लें, कलर डिज़ाइन का इंतखाब कैसे करें, इस तरह के कई सवालात जहन में रहते हैं। इबादत और घर का कामकाज साथ में ख़रीदारी, मानो इस पूरे महीने में ख़वातीन मसरूफ़ रहती हैं। इबादत के साथ हम ख़रीदारी भी करना चाहते हैं। अब तो हो गई थोड़ी कुरान शरीफ एक तो ख़त्म ही, अब पीछे अब ये भी ख़रीदारी हो गई तो फिर इबादत भी होती, रमज़ान के रोज़े भी पूरे होते, सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाता हमारा। तैयारी तो शुरू हो गई है माशाल्लाह, इस साल ईद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। मैं इधर कपड़े लेने आई हूँ, चमकदार कपड़े, मेरे को यहाँ से कपड़े बहुत पसंद है। मैं यहाँ कपड़े लेने आया हूँ, जुब्बा, पैजामा, कुर्ता, शर्ट, पैंट, शेरवानी। माह रमज़ान ढेर सारी खुशियों के साथ आता है। ज़ाहिरी खुशी के साथ बातिनी और रूहानी खुशी फराहम करता है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसका रमज़ान सलामती से गुज़र गया उसका सारा साल सलामती से गुजरेगा। पाक परवरदिगार से दुआ है कि इस एक माह की तरबियत, खुशू व खुजू का असर हम सब पर साल भर रहे और अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। तो नाजरीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का हमारा आज का एपिसोड जो शहर गुलबर्गा और रायचूर से पेश किया जा रहा था। उम्मीद के पसंद आया होगा। इसी के साथ मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर, कैमरामैन शिव कुमार, रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।